Welcome and good morning and smile morning to Meenu. Yes. Yeah. And I just want to say, ask Prakhar and Smile morning, Ji. Deepak, when Meenu Yes, said ma'am. smile morning, why didn't you people respond? अरे मैम अभी अभी मैं भी देखा, मैंने सेट देखा नहीं. Okay. And Prakhar, आपने भी नहीं सुना था? नहीं, अब कुछ आवाज आई थी, मैं अभी जस्ट वहाँ वो फेस वॉश कर रहा था. Okay. Okay, again smile morning to Meenu and everyone. Thank you so much joining me. Smile morning to all of you. Yeah. Because, Morning. many a times as a human being, we don't respond. Yes, yes. So I was like, I was on mute because I was just, handling few things here. And could be that you people were also on mute. So that is why you also didn't respond. Yes, ma'am. Yes. Yeah. But I just wanted to just bring it to the notice of everybody that many a times, we just, लोग हमें good morning बोलते तो हम परवाह भी नहीं करते हैं. हाँ. मैंने सुना कि कुछ आवाज आई, बट देन एक छोटी सी आवाज है, फिर चली गई, तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या आवाज आई थी फिर. हाँ, but I just wanted, because ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि ना लोग respond नहीं करते हैं. Many a times, even if you're working in office, and you're just walking और आपका कोई junior या कोई ऐसा, somebody who's not of your level or somebody who's, आपसे junior है या आप उसको नहीं जानते हो और वो आपको good morning बोलता है ना, तो आप respond नहीं करते हो. Many a time it happens. It happens with everybody. Not pointing out to any particular person, but it happens. So just wanted to bring this to notice that this is one opportunity to get connected to people. Yes. हमें इतने सारे good morning के messages आते हैं ना, even I do that and now I am getting present to it. कि अगर मुझे 15 लोग या 20 लोग भी good morning भेज रहे हैं, तो they are actually giving me a cue that you're going to have a good morning. Yeah. या तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, यार ये तो रोज सुबह आते रहते हैं मैसेज, काम नहीं है लोगों को, सुबह सुबह बस फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते रहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. और कितनी बार हमें पता है ना कि ये गुड मॉर्निंग ही भेजता है सुबह, हम उसको खोलते भी नहीं है मैसेज को. हाँ के ना? Yes, true. Yeah, we do that every day with so many people. But look at the intention of the person. That person is sending you wishes with the intention that you have a good morning today, that you have a day full of magic today. तो आज का हमारा चैप्टर भी ऐसा ही है कि कैसे हमें संकेत मिलते हैं कि हमें पूरे दिन में कैसे ग्रेटफुल रहना है. Yeah, and I just wanted to share something, but मैं ना कल से बहुत ज़्यादा ही I'm full of gratitude for Puran. We all know Puran Pandey. Yes. हमारे चुलबुल पांडे. That guy has immense energy. And the intention of that person is to live life 10 times excited. जब हम लोग लैंडमार्क में थे ना, तो हमारे एक एक्सरसाइज कराते थे वो लोग कि कोई भी मंडेन सी चीज भी है ना, ऐसे बेकार सी कोई एक पोएम है, उसको आप 10 टाइम एक्साइटमेंट के साथ कैसे पढ़ सकते हो? How can you enact it with 10 time excitement? He actually lives like that, life like that. No matter, अब ये थोड़ी कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, challenges नहीं आते हैं. तो बीच में he was, going through some challenges, and I just, sent him a message. And the way he speaks, full of excitement and all. मैंने कहा, I knew that you're, dealing with this, and I'm really proud of you that the way you handle things. He said, I only know one way of living life that is full of joy. And I don't know any other way of living life. I just live life full of joy. And आपको मैं बताऊं, कल उसने पूरा दिन क्या किया है? छोटा सा वीडियो भी भेजा था. एक छोटा वीडियो आपको भेजा ना, मेरा तो पूरा वो भरा पड़ा वीडियो से. That guy came to my house 2 days before Holi to spend
to celebrate Holi with me because he knows Okay. I stay alone, right? Uh, And he came, another friend of mine came, they both came and spent the night with us, and we had such a wonderful time. And then yesterday, day before yesterday morning, they left from my house. He went to his mother. उसकी mother अब उसके थोड़े दूसरे भाई के पास रहती है. वहां पे अपनी भांजी के साथ, अपनी मम्मी के साथ उसने मस्ती करी. Took them for a, रात को उनको गाड़ी में घुमाने लेके गया. उनके साथ उसने होली मनाई. Then he came back to his house. He went to his in-laws house. उसने अपने सास ससुर को नचा दिया, अपने साला साली को नचाया, सबकी वीडियोस बनाई हैं उसने. And his sister stays in Dehradun. और उसके sister और उसके brother-in-law, they both danced on the video. Video call पे उन्होंने नाचा है. He made them dance. And then पूरी कॉलोनी का तो उसने भेजा ही है. अपनी पूरी कॉलोनी में उसने कितना धमाल किया. And मैंने कहा चलो अब तो खत्म हुआ. And then I sent another video. 9th class के friends. उसके class friends 9th class के. और उनकी wives, they came to their house and they are having, dance party. And finally at night, and उसकी excitement में कहीं पर भी dip नहीं आया. मैंने जितनी उसकी वीडियोस देखी है, जितनी बार भी उसके मैसेजेस आए थे, full of excitement. And he actually has made this as a motto of his life. Living life with 10 times excitement. वो कहीं से भी आता है ना, वो घर में घुसता है ना तो hello everybody ऐसे करके बात करता है. अपनी बीवी के साथ, अपने बेटी के साथ and all. That is how he is. And I am so proud of having him in my life. Because that is one guy who actually, no matter मेरा एनर्जी लेवल कितना कम है, कितना ज्यादा, वो तो बस बढ़ा ही देता है एनर्जी लेवल सबका. His energy is so infectious. And I am so proud of him. And I am so blessed, that we have a person like him in our life. And we can learn from him. Yes, absolutely. And why is he living with 10 times excitement? Because he is grateful. He has gratitude for everything. I have known him for last, I think, 5 years or 4 years. I've never heard him complaining or cribbing or blaming anybody. Not even once. Imagine this, not even once. और अगर कोई बोल भी देना कुछ negative, and he will look for something positive to turn around that communication. He's actually living gratitude. And we have so much to learn from him. I just wanted to share this with you because you all know him. So I thought I'll just share it with you guys. Thank you so much for sharing that. Thank you. Good morning, everybody. And आज का चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी से ये चैप्टर आज का कॉन्वर्सेशन शुरू किया. मीनू ने सुबह सुबह बोला स्माइल मॉर्निंग. कपल ऑफ अस वर लाइक ऑन, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा था कि हमने लॉग इन किया हुआ है, but nobody responded. So I could hear her voice because मैं भी आसपास कुछ कर रही थी. And I asked कि हमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया उसको. तो I was sharing कि हमारे पास सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के कितने मैसेजेस आते हैं ना, और हम इरिटेट होते हैं. इनको कोई काम नहीं है, सुबह सुबह फॉरवर्डेड मैसेज भेजते रहते हैं गुड मॉर्निंग के. बट टुडे इज the chapter which is we are going to read today is going to tell you that is a cue from the universe for you to have a good morning and to be grateful that you have a good morning. क्योंकि हमने पहले से ही थैंक यू बोलना है ना, जो भी हम चाहते हैं उसके लिए. So somebody is already intending it. वो अपनी इंटेंशन आपको पहले ही भेज रहा है. तो वो क्यों भेज रहा है? Because universe wants you to know that you are going to have a good morning. And be grateful for that. So now onwards, अगर कोई good morning का messages भेजता है ना, खिजना मत उस पे. And just take it as a cue, that it is a cue from the universe. Yeah? Okay, anybody wants to say anything before we start today's chapter? कल होली कैसी रही आप लोगों की? किसने खूब मस्ती करी? किसने मनाई होली? बहुत मजा किया मैंने. राहुल
यार पुणे में या वीडियो शाम को का है 7:30 वीडियो पे आ जाओ प्लीज 7:30 बजे खत्म हो गया हम लोग का होली सेलिब्रेशन वीडियो पे आ जाओ ओके भेजता हूँ वीडियो भेजता हूँ गुड एनीबॉडी एल्स और किसने होली मनाई कल और खूब मस्ती करी किसी ने नहीं मनाई मैं गया था अपने रिलेटिव्स के पास तो हम लोग 3-4 रिलेटिव्स एक साथ मिले वहाँ पे लंच किया डिनर किया उनके बच्चों के साथ खूब खेला खूब मस्ती किया तो काफी एंजॉय किया गुड so I also had like neighbors वगैरह के बच्चे सब आए थे and हमने दही भल्ले बनाए थे and सबको कांजी सर्व करी and then I had friend and his wife they had come over for lunch and they stayed till late evening so it was a good day had like lots of fun and अच्छा लगा बट वो पहले जैसा नहीं था जैसे पहले करते थे एंड आफ्टर वाचिंग पूरन्स वीडियोस आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाई आर वी वेटिंग फॉर हैप्पीनेस टू कम टू अस हम जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ व्हाई am I waiting for people to come and bring joy into my life मैं क्यों चाह रही थी कि कोई मेरे घर में आए और मुझे बोले चल होली खेलने चलते हैं why was I not that person who's calling people out and say let's have fun what was stopping me I was just कल रात को मैं सोच रही थी कि मैं चाह रही थी कि हम लोग मस्ती करें सब मिले जुले गप्पे मारे जैसे पहले करते थे म्यूजिक चलाए एंड सब जने मिले सब अपने अपने घरों में घुस के बैठे हुए हैं and why was I not taking the initiative why was I waiting for it so मैं वो सोच रही थी कल रात को कि yes because we always like I always keep waiting life to happen but with magic we actually are learning how to create life ourselves and when we are talking about creating life ourselves it's not that one day I will reach that place and this is my goal creating life moment by moment every moment you can create your new reality every moment हमने जो 3 ड्रीम्स लिखे हैं वो तो होने हैं but every moment why can't we start creating a life the way we want it that was my learning from yesterday yeah that was my learning from yesterday that why am I not creating my life moment by moment why am I waiting for one day जब ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा तब why not right now so that was my takeaway from yesterday's experience yeah anybody else wants to say anything दर्शन जी आपकी कुछ टिप्पणी चाहूंगी इस पे I really feel very excited when the people are enjoying life. You see, and we used to go to the extreme. हमारी होली होती थी कि पानी छोटा टैंक होता, डिप टैंक होता, उसको पूरा रंग से भर देते, पानी से भर देते. Everybody has to be thrown in the tank. You see, and then सभी एक रंग में रंगे जाते. Holi is to color everybody in the same color of love, affection, yeah. And gratitude, and why not? Yeah. This is what Holi is all about. Yeah. Holi ये थोड़ी कि कीचड़ देके एक दूसरे के मुंह पे लगा दो. No, sorry, that is not the Holi. You see, और वो पक्का रंग लगा दो. वो छूटे ही ना 10 दिन तक कान में भी लगा रहे, नाक में भी लगा रहे. That is not Holi. You see, Holi is all love and affection. Holi is all to feel nice about people, nice about yourself. Yes, that's Holi. Yeah, that's right. And I that's why I wanted to share what Puran did yesterday. And that was what exactly he did. मतलब उसने अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा कम्युनिटी या ऐसा कोई भी एरिया या ऐसे कोई भी लोग नहीं छोड़े जिनको उसने ना छुआ और जिनको उसने ना एक्साइटमेंट के साथ और जॉय के साथ उसने मतलब होली के रंग में ना रंगा हो. If I put it like that. Very nice. Anything good has to be appreciated. You must appreciate. Nice to see Minu on live. And some people are really live wire, and Minu is one. And you are the first one in this whole group. ऐसा कुछ नहीं है.
मुझे मजा आता है कि जो इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, यू सी you have got so much of wealth, you know, so much of experience, so much of knowledge. So you traveled really all over country. When we are, so why don't you share it? Why don't you share it? Why don't you enjoy it? Anybody who approaches you, he should feel rewarded. He should feel awarded. He should feel wow. And this is what we all are. Actually, we are all so rich. We all are so you see magnanimous. We all are so forthcoming. That's why सवेरे उठ के तैयार होके and we are all here. Wow. Yeah. Yeah, that's right. Yeah, thank you so much, Darshan ji. Okay, so who would like to read today's chapter? Today's chapter is all about जो हमें एक संकेत मिलते रहते हैं छोटे छोटे कि हमें ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है. So who wants to read today's chapter? Can I read? Yeah, sure. Meenu, you want to read? I think Yes, I could. I wish to read. आप पढ़िए. Okay, sure. Chalo. Okay, so हम लोग इस जर्नी में है बिकॉज हम चाहते हैं, हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में वैसी जिंदगी हम क्रिएट कर पाए, राइट? और ये बुक हमें सिखा रही है कि ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम अपने जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, या और उसके लिए हमें मैक्सिमम टाइम गुड फीलिंग्स में रहना चाहिए और ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए. एंड गुड फीलिंग्स में रहने के लिए ग्रेटिट्यूड इज one of its most important way of staying in good feelings, right? And the easiest out of all the list which I had shared with you, feelings की जो list है, तो gratitude is doing what? Basically keeping us in good feeling zone. अब ये good feeling zone में रहने के लिए gratitude को अपने पूरे दिन को gratitude से भरने के लिए हमें ना यूनिवर्स कुछ कुछ संकेत देती रहती है. अब वो संकेत हम पकड़ नहीं पाते हैं बिकॉज हमें प्रैक्टिस ही नहीं है. बट विद सो मेनी डेज ऑफ प्रैक्टिस, अभी हमें 24 दिन हो गए, 25 दिन हो गए ये प्रैक्टिस करते करते, तो कहीं ना हमारी जो वो देखने की और सोचने की और पकड़ने की शक्ति है वो बढ़ गई है. यस और नो बताएं, आप अभी मैजिक पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं? छोटी छोटी बातें. Yes, ma'am. या एनीबॉडी एल्स पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो मैजिक? बिल्कुल पकड़ पा रहा हूँ. Yes. या क्योंकि मैजिक तो हमेशा से था बट वी कुड नॉट सी इट, एंड नाउ विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमने लाइफ के मैजिक्स को पहचानना शुरू कर दिया. और जब हम मैजिक्स को पहचानते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, और दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर अ ड्रीम लाइफ. जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड को, अपने दिन को ग्रेटिट्यूड से भरना है. अभी हम कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. वी आर डूइंग द काउंट योर ब्लेसिंग्स, वी आर डूइंग मैजिक रॉक, और उस दिन की जो प्रैक्टिस होती है वो करते हैं, या कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हमने अपनी जिंदगी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, जैसे कि खाने से पहले प्रे करना, या जब भी ध्यान आ जाए, जब हम स्टेप्स ले रहे हैं तो हम वी स्टार्ट टेकिंग मैजिक स्टेप्स, गुड स्टेप्स. और भी जैसे हमने कल मैजिक एयर किया परसों, तो हमने मैजिक एयर, जब भी हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है तो हम वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू एयर. तो अभी कुछ चीजें हमने अपने लाइफ में अभी से करनी शुरू कर दी है जिससे हम अपनी लाइफ में एवरीडे ग्रेटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं. सब लोग कर रहे हैं कुछ. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very much. हाँ, किसी को कोई प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी लग रही है, वो उस प्रैक्टिस को उसने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया एवरीडे, है ना? तो पर हमें अपने पूरे दिन को मैजिक से भरना है, ग्रेटिट्यूड से भरना है. वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यूनिवर्स ना हमें कुछ संकेत देती है, कुछ क्यूज देती रहती है पूरा दिन. अब जैसे आपने देखा हो ना, अगर कोई प्ले देखा हो आपने, तो जैसे स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको पूरे डायलॉग्स नहीं याद रहते हैं जैसे, तो कोई उसको पीछे से क्यू देता है ना, कि उसके सेंटेंस का कोई उसने वर्ड बोल दिया कि ये वाला वर्ड है, ये वाले वर्ड वाला सेंटेंस बोलना है,
ऐसे वो क्यू देते हैं, उसको देते हैं ना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो because ये it must be there in other areas of life also or performing arts also, but I know for sure ये स्टेज पे जब कोई प्ले कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, जैसे कोई मोनो एक्टिंग कर रहा है या प्ले कर रहा है, तो उसको वो पर्दे की साइड से खड़ा होकर कोई क्यू देता है. So today we are going to see how universe is giving us cue कि हमें gratitude करना है, ताकि हम अपने दिन को, अपनी जिंदगी के हर पल को gratitude से भर लें. Yeah? So let's start. Yeah, Minu, please start. Is the book visible to everybody? Yes. Yeah. Yeah, Minu, please start. He's on mute. Minu, are you able to see the book? Minu, you are on mute, I think. She's not on mute. Yeah, हाँ, mute पे तो नहीं है. She's not on mute. Earphones में कुछ problem आई थी last time ना शायद, as far as I can remember. Yeah. So Minu, you can directly speak without using your earphones. She's not listening. Change करती हूँ. हाँ, change करती हूँ. Hello, am I audible? Hello. Yeah, Now Minu. you are. Am I audible now? हाँ, Yes, थोड़ा सा माउथ पीस थोड़ा सा पीछे. Hello. मीनू, सुनाई दे रहा है. Hello. Yeah, Minu, Yes, we can hear you. Okay, let's start with day Yeah. 25. Cue the magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kallio, 1954, writer and therapist. Okay, so life is playfulness. अब जब हम छोटे थे या आप अपने आसपास बच्चों को देखोगे तो कितने प्लेफुल होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, मस्ती में रहते हैं अपने. अगर चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो एकदम थोड़ा सा रोते हैं, अगर कोई ना देख रहा हो तो वो फिर से खेलना शुरू हो जाते हैं. They're so playful. Life is meant to be like that. इसलिए कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दो, उसको छोटा ही बने रहने दो, क्योंकि जब आप जिंदगी में प्लेफुलनेस ले आते हैं तो आप जिंदगी में मैजिक को देख पाते हैं. या बिकॉज अदरवाइज तो अगर देखा जाए तो हमने लाइफ को कितना सिग्निफिकेंट बना दिया है ना. हमारे लिए लाइफ इज बिकम अ बर्डन. इट्स सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ सीरियसनेस. आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आप मुस्कुराते हुए देखोगे नहीं, हो मुस्कुराते ही नहीं है कभी. और हम लोग भी जिंदगी में कुछ भी हो रहा होता है तो इतने सीरियस हो जाते हैं. लाइक मुझे मालूम है कि अगर मतलब आई अगेन कोट पूरन हियर अगेन, तो अगर पूरन का फोन आया और मैं आई एम साउंडिंग थोड़ा सा जैसे सीरियसली बात कर रही हूँ, तो he'll just smile, he'll just say smile, and मेरा हंसी निकल जाती है, you know. तो because he says हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, be playful. तो सीरियस क्यों होना है? बट हम लोगों की जिंदगियों में हमने इतना कुछ देख लिया आसपास अपने लोगों को कि जो लोग सीरियस होते हैं लोग उनको सीरियसली लेते हैं, तो हमें लगता है हमें सीरियस ही रहना चाहिए, और हम कहीं ना अपना वो प्लेफुलनेस खो चुके हैं. एंड दिस बुक इज एक्चुअली मेकिंग अस अ चाइल्ड अगेन. अगर आप देखो पूरी बुक में जो कुछ भी वो बातें कर रही है तो वो बच्चों वाली बातें हैं, जो एक बच्चा ऑलरेडी ये सब कर रहा होता है. हमेशा खुश रह रहा होता है, मस्त रह रहा होता है, गुड फीलिंग्स में रह रहा होता है ना. और पर्पस क्या, गुड फीलिंग्स में रहना. तो वही कह रहे हैं, लाइफ इज प्लेफुलनेस. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. और हमारे आसपास मैजिक तो हमेशा से था, अभी भी है, बट जब हम प्लेफुल होते हैं तभी हम उसको देख पाते हैं. और अगर हम सीरियस होते हैं तो हमारे आसपास, अगर आपने देखो, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अपने साथ ही नोटिस किया होगा कि जब आप सीरियसली किसी चीज में बहुत ज्यादा अपने थॉट्स में हैं
किसी चीज को लेकर परेशान है या किसी चीज के को लेकर आप उदास हैं, आपके आसपास कुछ हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता. People are enjoying, people are happy, but you're not even having any, clue of Awareness. it. हाँ, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आसपास क्या कुछ हो रहा है. आप अपने ही आप में इतने घुसे हुए होते हो. बट लाइफ इज फुल ऑफ प्लेफुलनेस. आसपास सब जगह मैजिक है, और ये मैजिक जो है ना, ये बच्चों की तरह ही होता है. अगर तो आप उसको पहचान लोगे, अगर तो आप उसको देख लोगे, तो वो खेलेगा आपके साथ. नहीं तो वो जाके, अब देखो आप छोटा बच्चा है, अब वो खेल रहा है, आपके साथ खेलना चाह रहा है, आप उसके साथ खेलते हो तो वो आपके साथ खेलता रहता है. जहां आप अपने अपने काम में कुछ लग गए और उसने आपको 2-3 बार बुलाया, आपने कहा नहीं बेटा मैं बिजी हूँ, मुझे काम करना ही है, और वो जाके अपने आप अकेले में खेलना शुरू हो जाता है. होता है कि नहीं ऐसा? होता है. So same is magic with us. Magic is always there to play with us. जब तक हम मैजिक के साथ खेलते हैं, वो हमें दिखती रहती है, वो हमें हर जगह दिखता है मैजिक. पर जैसे ही हम उसके साथ खेलना बंद कर देते हैं, तो वो हमें दिखना बंद हो जाता है. इतने सालों से नहीं दिखा ना मैजिक. नहीं दिखता. मैजिक तो हमेशा से था. देखना पता ही नहीं था. That's what I'm saying. Now when you playful, when you're playing with it, when you're enjoying it, playfulness is what? Enjoying it, right? So when you're enjoying it, the magic is also, आके आपको बार बार दिखा देता, देखा ये देख. होता नहीं, जैसे आप कुछ कर रहे हो, पीछे से अचानक से आ गए, जैसे बच्चे करते हैं, धप्पा डरा देते हैं, हो ऐसे करके कर देते हैं ना, ऐसे ही वो मैजिक कहीं से भी आके आपको दिखा देगा. So that you feel happy about it. हम जब बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, बच्चा आके पीछे से दरवाजे में से आके ऐसे एकदम से कुछ कर देता ना, जब डराने के लिए हमें या कुछ, तो हम लोग एकदम से हंस पड़ते हैं उसके साथ और खुश हो जाते हैं. तो इसी तरह से मैजिक में कहीं से भी आके हमें दरवाजे के पीछे से, पेड़ों के नीचे से, कहीं से भी आके हमको दिखता है. क्यों? क्योंकि हम उसके साथ प्लेफुल हैं. So now onwards, just play like a child. एंड आज आपने पूरे दिन में ऐसे ही क्यूज पकड़ने के मैजिक कैसे आपको आके दिखा रहा है, मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ. So this is how you're going to play the game today. Yeah, please continue. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. थोड़ा सा माउथ पीस को पीछे कर लो मीनू. ओके, या ओके. तो अभी आप लोग, आपको पता है आप हर टाइम वैसे भी गेम खेल रहे हो, पता है आपको? Yes. Every day, every moment you are playing a game. अगर तो आप गेम खेल रहे हो, मैं बेचारा, सारी परेशानियां मेरे सर पे, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. So this is a game which you're playing. It could be a game of a blame game, or it could be a game of being a victim. And जो भी आप गेम खेलते हो ना, you're always winning that game. Always winning that game. जो भी गेम आप अपनी जिंदगी में खेल रहे हो, आप हमेशा वो गेम जीत रहे हो. Yeah. So the magic, Cue the Magic is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe. अभी तक जो आप गेम खेल रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो विक्टिम होने का है, चाहे वो ब्लेम करने का है, चाहे वो अबला नारी का है, या कुछ भी खेल रहे हो आप गेम, वो गेम आप अभी तक जीत ही रहे हो. But today you are getting an opportunity to play a game with the universe. अभी तक तो आप अपने साथ ही खेल रहे हो ना वो गेम, मैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसे ही गेम तो खेल रहे हैं हम अपनी जिंदगी में. But today's game, you're going to play with the universe. And you're going to have lots of fun playing that game. Are you all excited to play that game today? Yes. Great. Okay, so let's read. Imagine that the universe is friendly and caring. And that is what it wants you to have everything you want in life. Because the universe cannot just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. Okay, so it says universe is your friend.
तो अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें उसने अलादीन का वो चिराग का एग्जाम्पल दिया है ना, जो यूनिवर्स इज लाइक अ जिनी, जो उसमें Yes. जिनी था वो जिन था, जो अलादीन के पास जो लैम्प था जिसको वो रब करता था तो उसमें से एक जिन निकलता था और वो बोलता है क्या हुक्म मेरे आका, है ना। तो यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक दैट, इट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, इट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। तो अभी आप जैसे ही उसको याद करते हो वो आपके लिए प्रकट हो जाता है, बट वो प्रकट कैसे होता है, वो खुद तो आ नहीं सकता ना, आपको दिख नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो कोई ना कोई जरिया बना देता है, क्योंकि भगवान तो खुद आ नहीं सकते, तो वो अपने किसी ना किसी बंदे के थ्रू हमें कोई मैसेज भिजवा देता है, या किसी ना किसी के थ्रू हमें वो चीज करवा देता है जो हमें चाहिए थी। होता है ना हमारे साथ। Has everybody experienced it? Say yes or no. Or you can write it in the chat box. Yes or no? बहुत बार हुआ है। Yeah. So many time it happens कि हमने कुछ मांगा, हमने कुछ चाहा भगवान से, और किसी और के थ्रू हमारा वो काम हो गया, तो हम उस टाइम पे क्या कहते हैं, यार ये भगवान की कृपा है, और भगवान ने किसी ना किसी को तो जरिया बनाना था ना। हमारा यही हमेशा डायलॉग होता है कि किसी ना किसी को तो जरिया बनाना था, somebody is instrumental in that, है ना। तो किसी को चैनल बनाता है जिसके थ्रू हमारे तक वो चीज पहुंचती है। तो सिमिलरली सिंस यूनिवर्स कैन नॉट बी देयर फॉर अस, बिकॉज वो खुद नहीं कर सकता सब कुछ हमारे लिए, तो उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है कि हमें कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ क्यूज, कुछ संकेत जो है वो हमें यूनिवर्स देता है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। She's on mute. Meenu, please read. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surrounds you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. Okay, तो अभी वो क्या कह रहा है कि क्योंकि वो आपके ड्रीम्स फुलफिल करना चाहता है, वो चाहता है आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो आपको क्यूज देता है टू बी ग्रेटफुल, कि आप जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी जल्दी आपकी चीजें, सपने आपके जो आप चाहते हो वो मिलेगा आपको। तो उसके लिए वो आपको क्यूज देता है, आपको साइंस देता है टू रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल। क्योंकि हम लोग तो जिंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड करना। अब कुछ आदत पड़ती जा रही है, बट फिर भी कितना करते हैं पूरे दिन में, कितना करते हैं। अगर हम मैजिक फुट स्टेप्स नहीं कर रहे हो तो हम 100 टाइम्स भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। लाइक आई फॉर माई सेल्फ, इफ आई से नहीं करती हूँ मैं 100 टाइम्स। अगर मैं फुट स्टेप्स कर रही हूँ तो यस, अदरवाइज कितनी बार होता है, 10 बार 15 बार, वो मैं बिकॉज यू राइटिंग काउंट द ब्लेसिंग्स, 10 बार तो वो हो गया, उसके बाद कितनी बार होगा, 10-15 बार एक और हो जाता होगा। बट इट इज गिविंग अस रिमाइंडर्स, यूनिवर्स हमें रिमाइंडर्स देता है कि बी ग्रेटफुल, अब इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अब इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो वो ऐसी चीजें हमें दिखाता है जो हमें क्यूज देती है कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और ये जितने क्यूज होते हैं ना, ये हर इंसान के लिए पर्सनल होते हैं। जो क्यू प्रखर के लिए है वो मेरे लिए नहीं होगा, और वो मुझे दिखेगा भी नहीं। और जो क्यू मीनू के लिए है वो प्रखर के लिए नहीं होगा, वो प्रखर को दिखेगा ही नहीं। तो ये पर्सनल क्यूज देता है, कस्टमाइज क्यू देता है यूनिवर्स हमें। या सो दैट इज हाउ इट इज। हाँ जी, पढ़ें। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. Okay. अभी आप मुझे बताएं, जब आप किसी एम्बुलेंस को देखते हैं या सायरन सुनते हैं एम्बुलेंस का, so what is the first thought which comes to your mind? I want a couple of you to share. कोई पेशेंट है उसको ले जा रहे हैं। I always send out a blessing कि whoever is there may he heal fast. Okay, great. I always do that, yeah. Great.
Who else? और किसको क्या लगता है जब कोई एम्बुलेंस जा रही होती है तो? अभी लास्ट मंथ जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में नहीं आया तो उसके पहले ये लगता था भाई कोई बीमार है, किसी को ले जा रहे हैं, जल्दी से साइड इसको दे दो अगर रास्ते में है, तो बस इतना होता था. Okay. And anybody else wants to share? एम्बुलेंस की आवाज सुन के या एम्बुलेंस को देख के आपको क्या दिमाग में आता है उस टाइम पे? ये लगता है मुझे तो कि है बेचारा कोई बीमार है, वो जा रहा है, बाबा जी कृपा करो, मेरे मुंह से निकलता. Okay, great. Anybody else wants to share which is different from what others have shared so far? Time is an essence for that person, और इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उसे पहुंचना चाहिए. And everybody should fall in place to make this happen, कि वो जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए. Yeah. So हम सबको कुछ ना कुछ उससे क्यों मिलता है ना. हमें लगता है कि अरे भाई रास्ता दे दो, इसमें कोई बीमार इंसान है, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, या कोई बोलता है कि भगवान जी जो भी इसमें है उसको जल्दी ठीक कर दो, यू नो, या इसकी तकलीफ को आप ठीक कर दो, या कुछ भी ऐसा. एंड मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना एम्बुलेंस देख के क्या लगता था, उसको एम्बुलेंस देख के लगता था यार ट्रैफिक से निकलने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है. आप एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा लो, वो एम्बुलेंस को सब रास्ता देंगे, आप उसके पीछे फटाक से निकल जाओगे. सो दैट वाज व्हाट एम्बुलेंस मेंट टू हर. या सो हर एक का एम्बुलेंस को लेके एक अलग सा वो ना रहता है कि अच्छा एम्बुलेंस का मतलब ये. या सिमिलरली जब कोई पुलिस वाले को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये सेफ्टी और वो तो छोड़ दो, मुझे पता किसी के नहीं आता. बताओ क्या आता है जब पुलिस वाले? Very beautiful perspective, no? That you see an ambulance, you are actually grateful for your own perfect health. Yeah, And that you see a is police that car, is a yeah. cue. That is a cue. Yeah. लास्ट टाइम मैंने पुलिस वाले को देख के क्या लगता है? आजकल तो आता है फटाफट मास्क लगा लो, अभी चालान काटेगा. या पुलिस वाले को देख के तो कभी ऐसा नहीं लगा मुझे. या और हमें क्या लगता है, खड़े हैं यहाँ पे आज की दिहाड़ी बनाने के लिए. Yes, yes, यही लगता है ना हमें. yes. Sometimes I do feel that the traffic police ones कैसे गर्मी में और मास्क लगा के यूनिफॉर्म पहन के, people are being nasty to them at times, but I sometimes do feel, but this is a wonderful perspective that you can feel grateful for your own safety. या एंड जब हमने थालियां बजाई थी, याद है उस दिन हमने क्या बोला था? Yeah. सिर्फ एक दिन हमने बोला था वो सब, और उसके बाद हमारा पुराना पर्सपेक्टिव वापस आ गया. लॉकडाउन के टाइम पे जब हमने वो पुलिस वालों को देखा कैसे वो लोग खड़े रहे इतनी, जब सब जगह पे लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और वो लोग दिन रात ड्यूटी पे लगे हुए थे, तो उस टाइम पे हमारे मन से कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा निकला था. ग्रेटिट्यूड. या बट जैसे ही वो वाला फेज निकल गया, वी आर बैक टू आवर ओल्ड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देम. यस और नो? यस. इनफैक्ट जगजीत आप बोल रहे हो तो मुझे याद आया, उस दिन मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी, हमारे घर के सामने कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें थाली बजा रहे थे सब लोग, एंड द पुलिस पीपल हैड कम एंड दे हैड हेल्प. सो आई हैड एक्चुअली zoomed in and taken a recording of that, and I don't know for what reason I put it on my Insta, and I'm not an Instagram or a social media person, but मैंने उस दिन करा था ये, and I was really feeling कि जैसे हम अपने soldiers के लिए कहते हैं कि सियाचिन में खड़े हैं while we are sitting here safely. This is a very strong implant in our brain as Fauji kids that they have really sent out a gratitude, but उसके बाद भूल गई. That's what I'm saying. हाँ, but आज के बाद, I mean, for example, जब मैं एम्बुलेंस को देखती थी, जब मेरी मदर like every time she used to fall sick, तो like 3-4 बार मैं उनको एम्बुलेंस में आधी रात को लेके गई हूँ. तो मुझे एम्बुलेंस, जब मेरी मदर की डेथ हो गई तो मुझे एम्बुलेंस की आवाज से इतना घबराहट होती थी कि मुझे एम्बुलेंस की आवाज आती थी ना, मैं कान बंद कर लेती थी अपने, मेरा इतना जी घबरा जाता था. तो मैं एम्बुलेंस की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. So for some time I was just not able to bear that sound of ambulance. So मेरे लिए एम्बुलेंस रिमाइंडर थी about my mother's death, about her suffering, all the experience I had in the hospital. तो मेरे लिए वो रिमाइंडर था. Yeah, but now after reading magic so many times after that, मम्मी के जाने के बाद तो मेरे ख्याल में मैं 8-10 बार कर चुकी हूँ ये मैजिक को. तो जब करने के बाद से ना,
अब ये इनग्रेन हो गया मेरे लिए कि जहां से भी एम्बुलेंस की आवाज आती है, द फर्स्ट थिंग आई से इज थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ. पहले कहीं ना कहीं एक फियर आ जाता था कि हाय किसी दिन मुझे ना जाना पड़ जाए, यू नो. तो अभी क्या है, एवरी टाइम आई हियर एन एम्बुलेंस, द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड इज टू बी ग्रेटफुल फॉर माय ग्रेट हेल्थ, दैट थैंक यू गॉड कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ. So this has changed for me. So this was the cue which I caught after reading this book. Similarly, you can see कि आप जब पुलिस वाले को देखते हो, तो now since we are talking about those lockdown period, तो वो इंसान तो वही है जो उस टाइम भी था और आज भी है. हमारा ही पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना, and we can change it anytime. Yeah. So start feeling grateful for them. When you start paying gratitude, and you know, mass gratitude, when mass gratitude is done, we read about it in the food wala chapter also. जब हम mass gratitude किसी चीज के लिए देना शुरू करते हैं ना, तो things start changing around us. और अगर हम सब लोग mass gratitude पुलिस वालों के लिए देना शुरू कर दें, imagine उन सबका attitude towards people will change. उनका behavior towards people will change. हमारा पर्सपेक्टिव तो चेंज होगा ही होगा. जो हमें उनमें चीजें दिखती है ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, वो करना ही छोड़ देंगे वो चीजें. So if we start doing this practice, so this is just a cue. This is example दिया है उसने कि इस तरह के क्यू आपको जिंदगी में मिलेंगे जो आपको रिमाइंड कराएंगे कि आपको ग्रेटफुल होना है. या हाँ जी, पढ़ें. If you want to change the, am I audible? Yeah. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. Okay, तो अभी हम किसी को देखते हैं, मान लीजिए मुझे ना मतलब बड़ी सेक्सी सी फिगर बनानी है अपनी, मुझे कम से कम 10 किलो या 15 किलो वेट रिड्यूस करना है. Okay, and I see somebody who has that kind of a perfect figure. तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? वाह यार, इसकी फिगर कितनी अच्छी है, पता नहीं मैं ऐसी कब आऊंगी. या मतलब सबसे पहले कंप्लेन ही आई है, उसके लिए एनवी आई है और अपने लिए कंप्लेन आई है. बट दैट इज एन अपॉर्चुनिटी to be grateful for your perfect weight or your perfect figure, because gratitude is that you feel as if you already received it in the present, and then you say great, thank you for that. तो जब आप उसको देखते हो, that is a cue for you to be grateful for your perfect figure or your perfect weight. अभी हम यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना अलग से. फिर से हम किसी को देखते हैं परफेक्ट फिगर या परफेक्ट वेट के साथ, तो हमें लगता है यार वाओ, इसकी फिगर कितनी अच्छी है. पता नहीं यार, हम तो सारी मेहनत कर चुके, कुछ नहीं होता यहाँ पे. तो क्या किया हमने? अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि हमने बोला कुछ नहीं होता, और यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु, जो आपने बोला वही हो. तो कुछ नहीं होता मतलब कुछ नहीं होगा आगे भी. There is a cue here. जब आप उसको परफेक्ट वेट में देखते हो, you say thank you for your perfect weight as if you have already received it in the present, and say thank you. Yeah, is it clear to everybody? Yes. Okay, please continue. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for. Change the page. Done. Children. lag आ जाता है. Grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Okay, so अभी इसने इतने सारे cues आपको बता दिए कि अगर आपको रोमांटिक पार्टनर चाहिए and you see somebody madly in love, you know, आप किसी को देखते हो, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? क्या शो ऑफ करते हैं यार लोग, क्यों अंदर से जलन हो रही है. मतलब ये कोई जगह है जहाँ पे इतना तुम अपना एक दूसरे के लिए अफेक्शन दिखा रहे हो?
अपने बेडरूम में जाके करो, अपने घर पे जाके करो, या आप क्या हनीमून मनाने आए हो? सो ये कहाँ से आ रहा है? बिकॉज यू आर फीलिंग एनवियस, यू आर फीलिंग जेलस, और इससे आप क्या कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आपको अगर परफेक्ट पार्टनर चाहिए तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। बट इफ यू एक्चुअली सी समबडी मैडली इन लव, केयरिंग फॉर ईच अदर, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, होती है ना कोई कोई कपल जिनमें आपस में बहुत अच्छा तालमेल होता है, और आप बोलते क्या यार क्या परफेक्ट पार्टनर्स है ना, क्या परफेक्ट कपल है, होता है ना ऐसा। तो जब हम उनको देखते हैं एंड वी से ग्रेटिट्यूड फॉर योर परफेक्ट पार्टनर, जो अभी आया नहीं है पर आपको चाहिए, उनको देख के जब आप अपने लिए बोलते हो ना, थैंक यू फॉर माई my perfect partner who's as romantic or as as caring and whatever you want to say, and say gratitude for that. That is a cue that you have to be grateful for that, because आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, तो आपको क्यू दिया है, वो जलने के लिए नहीं बोला है उसको देख के, आपको एक क्यू है। और अगर आप कहीं रास्ते में एटीएम देखते हो, तो एटीएम देखने के बाद ये नहीं सोचना यार मेरे बैंक में तो अकाउंट में पैसे ही बहुत कम है, ये नहीं सोचना है। When you see an ATM, be grateful for the abundance of money you have, because then you will attract abundance of money. अगर आप scarcity के बारे में सोचोगे तो आपने पढ़ा है मनी के चैप्टर में, जैसे आप नेगेटिव थॉट्स लाते हो, it starts going down, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी को बच्चे चाहिए, उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, और वो लोगों के साथ देखते हैं कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, या ये बच्चे कितना शोर मचाते हैं, God, it's so difficult to manage them. And then what are you doing? तुम्हें बच्चे चाहिए और तुम कर क्या रहे हो? अगर आपको बच्चे चाहिए तो you have to feel happy. वाओ, कितनी मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे ना, कितना joyful है। एंड देखो कितनी सुंदर लग रही है लड़की, दो रबर बैंड लगा के इतनी सुंदर सी फ्रॉक पहनी है। Look at the smile on that that girl's face. When you start appreciating children, that is how you will attract children in your life, and be grateful for that. At that moment, when you start paying gratitude that I have such beautiful children, you will feel gratitude for that after looking at those children, and then that will bring your dreams, turn your dreams into reality. So ये एक cues है छोटे छोटे, जिससे आप अपने पूरे दिन को gratitude से भर सकते हो, और जितना ग्रेटिट्यूड से भरोगे उतनी जल्दी आपके सपने साकार होंगे। या हाँ जी, पढ़े। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Okay, तो अभी आई डोंट नो बिजल है कि नहीं आज सेशन में। So Bijal wanted a particular car. उसको एक गाड़ी पसंद है बहुत, and suddenly when she was sharing, वो जहां जाती है उसको वो गाड़ी दिखती है, हालांकि वो इतनी कॉमन गाड़ी नहीं है, और उसके घर के बाहर किसी पड़ोसी के घर में वो गाड़ी आई हुई थी। And she says, I was so surprised कि मुझे हर जगह वो गाड़ी दिखने लगी है, मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे पीछे साइड से वो गाड़ी निकल के जा रही है। So that's a cue from the universe to be grateful for your dream car, as if आपको मिल गई है और अभी मिल गई है, because practice तो वही करनी है ना हमें, present में उसको ऐसे feel करते हुए as if you already got it, you start paying gratitude. So these are the small cues which will help you to realize your dreams. आपकी मनचाही दुनिया को, आपकी मनचाही जिंदगी को आपके पास लाने के लिए ये छोटे छोटे संकेत यूनिवर्स हमें देती है। हाँ जी। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Okay, तो अभी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई गुड मॉर्निंग भेजता है तो इट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स दैट बी ग्रेटफुल फॉर अ गुड मॉर्निंग। मैंने अब शुरू में ही शेयर किया कि हमारे पास गुड मॉर्निंग के इतने मैसेजेस आते हैं कि हम खोलते ही नहीं उनको,
एंड कहीं ना कहीं खिज रहे होते हैं, इस बंदे को और कोई काम ही नहीं है, वेला है। वेला, सुबह सुबह सबको फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग भेजता रहता है. अरे ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू सेंड यू गुड मॉर्निंग बिकॉज इंटेंशन इज दैट यू हैव अ गुड मॉर्निंग एंड इट इज अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर अ गुड मॉर्निंग. वो याद कराता है यूनिवर्स आपको कि आप भूल रहे हो कि आपकी मॉर्निंग बहुत गुड है आज, आप जिंदा हो, आप इस धरती पे हो एक्सपीरियंस करने के लिए आज. And it's a beautiful day, it's a beautiful weather, so you start feeling good for the morning which has begun right now. Yeah, so that is a cue from the universe. वो universe खुद तो आ नहीं सकता ना आपको बताने के लिए, तो वो cue भेज रहा है through these messages. and हमने ये cues हम अभी तक पकड़े ही नहीं थे, जबकि ये cue तो हमारे पास रोज ही आ रहा होता है, right? Similarly, when you see somebody happy, so it's a cue to be happy, pay gratitude for happiness. Like yesterday when Puran was sharing those videos after videos after videos throughout the day yesterday, I mean, it was giving me happiness somewhere, as if I was part of that. Yeah. And that was the intention, because he wanted me to feel happy. He wanted everybody else to feel happy. So when you start feeling gratitude for that happiness, because somebody else is happy, you are attracting happiness into your life. And that is a cue from the universe. So ऐसे आपको बहुत सारे cues मिलते हैं जो हम miss कर देते हैं because we are not playful. And आज हमारे पास opportunity है to stay playful throughout the day. And जैसे ही कुछ ऐसा कुछ दिखता है या कुछ सुनने में आता है, तो आपको करना क्या है? Gratitude देना. तो अगर आप कहीं से निकल रहे हो, पास से निकल रहे हो किसी को, और कोई फोन पे बात कर रहा है, oh I'm so grateful, thank you so much, उसने थैंक यू बोला, तो आपको सोचना है मुझे इस टाइम किस चीज के लिए थैंक यू बोलना है. मे बी यू हैव टू से थैंक यू टू दैट पर्सन हु सेड थैंक यू टू रिमाइंड यू टू से थैंक यू. You never know what comes to your mind at that moment, but the cue is to be grateful. जैसे वो मैजिक रॉक वाला करता था, अपनी जेब में वो मैजिक रॉक लेके चलता था पूरा दिन, एंड एनी टाइम ही यूज्ड टू पुट हिज हैंड इन द पॉकेट, और उसका हाथ अगर टच होता था उस रॉक को, तो ही यूज्ड टू से ग्रेटिट्यूड फॉर समथिंग और द अदर. या तो उसने मैजिक रॉक से वो करा था. बट यूनिवर्स हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज पूरे दिन में देता है टू बी ग्रेटफुल फॉर. सो द ओनली आइडिया इज टू फिल योर डे विद ग्रेटिट्यूड, एंड इस छोटे छोटे क्यूज को पकड़ना शुरू करें. हाँ जी. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. या तो जब भी आपको कोई क्यू मिलता है, आप ना सोचने में मत बैठ जाना है ये मेरे लिए क्यों था कि नहीं था, और ये किस चीज के लिए क्यों था. डोंट गेट इनटू ऑल दैट, क्योंकि जब भी आपको कोई क्यू मिल रहा है वो आपके लिए ही है और उसी मोमेंट के लिए है. क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी गलत क्यू नहीं भेजेगा, और जो भी आप उसका मीनिंग निकाल रहे हो, क्योंकि हम क्यू से कुछ मतलब ही तो निकालेंगे ना. जैसे एम्बुलेंस का है, एम्बुलेंस से सबका अलग अलग आ रहा है ना. किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, पुलिसमैन को देख के किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है. वो जो क्यू है उससे आपको क्या समझ आ रहा है, वो आपके लिए वही सही है. उसमें सही गलत में मत जाना कि ये जो क्यू मुझे मिल रहा है इसका मतलब ये है या कुछ और है. नॉट एट ऑल. जो क्यू मिल रहा है और इसका जो आपको उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे, उस मोमेंट में जो आपको उस क्यू का मतलब समझ आ रहा है, वही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है, वही यूनिवर्स आपको क्यू दे रहा है. एंड आपका जो क्यू है वो सिर्फ आपके लिए है, वो किसी और को नहीं दिख रहा होगा वो क्यू उस टाइम. और अगर दिख भी रहा होगा तो उस क्यू का मतलब उस इंसान के लिए कुछ और होगा, क्योंकि उसकी लाइफ के लिए उस क्यू का मतलब वो है, और आपकी लाइफ में उस क्यू का मतलब वो है जो आपने समझा है. या प्लीज कंटिन्यू. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the
magic of gratitude into motion. Yeah. Yeah, please continue. When I receive a phone call from a friend or a family member, it's cute to be grateful for him or her. And someone says, "Isn't it a beautiful day?" It's a cute to be grateful for a beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's cue to be grateful for the mail service. And for unexpected checks, when someone says they have to go to an ATM, or I see people in a line at an ATM, it's a cue to be grateful for शायद money. इससे कंधे की तरफ से सो गए हैं शायद ना. रंजन जी प्लीज म्यूट पे जाएंगे. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's cute to be grateful for the great day ahead. And when I Okay. close Okay, one second. And and yeah, and when I yeah, close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. yeah. So अभी इसने कितने सारे क्यूज आपको बताए ना कि कैसे कैसे क्यूज आप पकड़ सकते हो. या तो अगर कोई जैसे आप सुबह सुबह कर्टन्स खोलते हो, इट्स अ क्यू कि आप आज के दिन के लिए थैंकफुल हो सकते हो. और रात को अगर आप कर्टन्स बंद कर रहे हो तो आप पूरे दिन के लिए थैंकफुल हो सकते हो, है ना. इस तरह से आप अगर किसी का फोन आया आपको तो आप उस बंदे के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है. या या आपके पास अगर अमेजन से पैकेट आया, आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन और अमेजन वाला आपको दे के आया, so it's a time to say great gratitude to the person who's come. It's a time to say gratitude to the Amazon, the kind of services they are providing. So हर चीज में क्यों है to be grateful for. आप जितने पकड़ पाओगे उतना ही अपने दिन को आप ग्रेटिट्यूड से भर सकते हो. या इसमें उसने कितने सारे आइडियाज दिए हैं. इस तरह से अगर आप अभी भी अपने आसपास देखोगे आपको कितने सारे क्यूज तो अभी मिल जाएंगे. Like I'm getting a cue about fan right now. I'm so grateful for this fan, which is actually giving me, that temperature जितना मुझे इस कमरे में इस टाइम चाहिए to sit through this session. Yeah. और अगर ये फैन चल रहा है तो किसके लिए grateful हूँ? Because of the electricity. I'm so grateful to the Tata Power for the supply of electricity, which is enabling me to sit through this session. I'm able to, conduct this session on the laptop. Internet भी connect हो रहा है उसी की वजह से. And मैंने lights लगाई हुई extra, for the video. That they are working. So there's so many things to be grateful for. Just one cue of a fan has connected me to so many things to be grateful for. Yeah. So similarly, I can see this, मेरी laptop के पीछे मेरा इतना मोटा मैनुअल पड़ा लाइफ कोचिंग का जो मैंने लाइफ कोचिंग किया. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस opportunity that I could do this course and I'm able to make difference in people's life. And it is because of this course, because whatever is written in this, I'm grateful for that. I'm grateful for the person who's actually created this manual. I'm grateful for the people who were there with me in the session. There's so many things to be, grateful for. वो एक क्यू से आप कितना उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, that's up to you. पर क्यू आपको हर जगह मिल रहा है, अभी भी मिल रहे हैं आसपास आपके. You can start looking around and, start catching the cues. And maybe after the session, if you want to share, you can share. आपको क्या क्या क्यू आसपास दिख रहे हैं. हाँ जी, पढ़ें. To play Cube, the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you
makes you for more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become. And the more easily you attract money, dreams. So universe, cue the magic. Okay. Okay. So I just wanted to say that last line में money कहीं नहीं था. That's what you want to attract in your life. ऐसे कुछ मुंह से नहीं निकलता हमारे. Yeah. Okay. So that's a cue from the universe for you to be grateful for all the money you have in your life. Okay. तो अभी यहाँ पे उसने कहा है कि cue the magic करने के लिए आपको करना क्या है. So the only thing you have to do is to stay alert. जब हम alert होते हैं, aware होते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, तभी हम cues को पकड़ पाते हैं. तो अगर आपको याद हो, हमने बीच में एक चैप्टर में पढ़ा था ना, that universe is waiting for your wits to get sharpened. था ना, हमने पढ़ा था ना बीच में. So अभी या तो अभी इतने दिन में हमारे विट्स शार्पन हो गए हैं, हमारी बुद्धि इतनी पैनी हो गई है कि हम अब क्यूज को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम इतने अलर्ट हो गए हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आसपास जो हो रहा है उस चीज को लेके. हमारी जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, वो बढ़ गई है पहले से. यस और नो? यस. सबकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हाँ, मैं बहुत बढ़ी. Yes, yes. Yeah. So वो awareness and alertness is what is required for today's chapter. तो आप जितने alert और जितने aware रहोगे, उतने ही आपको cues दिखेंगे, और जितने आपको cues दिखेंगे, आप उतने ही gratitude देते जाएंगे, और जितना आप gratitude देते जाएंगे, उतना ही आपकी life magical होती जाएगी. It's a simple formula, right? इतना तो हमें समझ आ गया, जितना gratitude देंगे, उतना ही हमारी life magical होगी. और ग्रेटिट्यूड वो बढ़ाना कैसे है, उसके लिए यूनिवर्स हमें क्यूज देता है, और सबके पर्सनल क्यूज होते हैं. किसी का भी क्यू दूसरे क्यू से नहीं मैच करता है. अगर क्यू भी सेम होगा तो मीनिंग अलग होगा उसका. या सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव रेड इन दिस होल चैप्टर. तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी लाइफ को और ज्यादा मैजिकल बनाते जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज क्यूइंग यू with the magical cues. Yeah. Okay, let's read the magic practice. Magic practice number 25. Cue the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today, be alert to what's around you, and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Okay, number 1, of course, you know what to do. Number 2, it says, आज आपको पूरे दिन में alert रहते हुए 7, ये पहली बार ये नंबर आया 7, अभी तक 3 और 5 ही चल रहा था, अभी ये 7 हो गया है. मतलब आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रैक्टिस बढ़ चुकी है, तो अभी आप 7 पे पहुंच चुके हो. 3 और 5 से 7 पे पहुंच गए हो. तो आपको 7 क्यूज पकड़ने हैं आज पूरे दिन में. अगर आप चाहोगे तो आप अभी सेशन खत्म करते करते ही 7 क्यूज आपको मिल सकते हैं, बट आप कितने अलर्ट एंड अवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो आप पूरे दिन में आपने 7 क्यूज पकड़ने हैं, एंड बी ग्रेटफुल जहां जहां पर भी आपको वो क्यूज मिलते हैं. हाँ जी. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. And रात को आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, वो सबको पता ही है कैसे करना है. And the most easiest and simplest practice which this book has given us, and which you can use it throughout your life. So thank you so much, Meenu, for reading for all of us. And so I want somebody to share आपको क्या क्या क्यू नजर आ रहे हैं आपके आसपास. At least share one cue. या प्रखर. अक्सर ऐसा हो रहा है यहाँ पे. I came to Noida at a new place. So बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बट सेशंस के टाइम पे अभी तक एक बार भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, एक बार भी वाईफाई रुका नहीं है. वाओ, ग्रेट.
या सो आज जब तुमने इस चीज को रियलाइज किया तो दिस इज अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू से ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. या ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. I have a doubt. वो जो Yeah. आज के मैजिक प्रैक्टिस में लिखा है, when you see someone with your perfect weight, be grateful. So what does that mean? Weight, somebody with a weight which is exactly equal to my similar to my weight, or somebody who is in a perfect weight, though I am not in that weight, and then I would be grateful for some future time that I would achieve Yeah. that. या What तो does that अगर मेरे को अपना परफेक्ट वेट चाहिए जो मेरे पास नहीं है अभी, बट आई सी समबडी हु हैज अ परफेक्ट वेट, उसकी बॉडी, उसका बॉडी वेट और उसका बॉडी उसकी फिगर या उसका, अगर रंजन जी प्लीज आप म्यूट पे जाएंगी. या सो अगर आपने किसी को देखा जिसके सिक्स पैक्स हैं एंड यू ऑलवेज वांटेड अ सिक्स पैक्स, दैट इज वन ऑफ योर ड्रीम्स. जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं उसमें मान लो आपका ड्रीम है कि मुझे सिक्स पैक्स बनाने हैं अपने, ठीक है, और आपके पास अभी नहीं है, बट यू सी समबडी, आपने किसी की पिक्चर देखी या आप जिम में गए और वहां पे कोई कर रहा है और उसके आपने देखे वाओ इसके सिक्स पैक्स बन गए, यू नो. सो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. द मोमेंट यू सी दैट यार इसके तो सिक्स पैक्स बन गए, मेरे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सो दैट इज नेगेटिव. दैट विल नॉट गिव यू योर सिक्स पैक्स. It will actually not, it will take it away from you. The other thing is you say, wow, this guy's got six packs already, and thank you universe for giving me six packs. Because हम सारे अभी तक सारी प्रैक्टिस क्या करते आए हैं, we visualize as if we have already received it, and then we say thank you. So it's a cue कि आपने किसी को देखा तो आपके पास एक क्यू है कि आपने अपने परफेक्ट वेट के लिए विजुअलाइज करते हुए थैंक यू बोलना है. दैट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. इज इट क्लियर नाउ? Yes. ओके, थैंक यू. एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? आपको अभी आसपास क्या क्यू दिख रहा है? यस मैम, राहुल. या राहुल, मैं भी जिम आ रहा था तो आते टाइम जो मेरे सोसाइटी के वॉचमैन ने गेट खोला, तो मुझे लगा कि ये उसका जॉब है, वो अपने बिल्डिंग में रहता है, तो मेरे लिए मेरा अच्छा घर है. दैट्स इट. सेकेंडली आई हैव अ वेरी वेरी गुड जॉब. दो, तीसरा आते टाइम मैं देख रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जो काम कर रहे थे और वो मॉर्निंग से मतलब ये अपना 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते हैं और अपना वर्क फ्रॉम होम. तो अगेन द मैजिकल क्यू इज लाइक राइट नाउ यू आर ऑन अ ब्लेस्ड पोजीशन, यू आर इन अ ब्लेस्ड कंपनी. So that's the cue. Then मैम आते टाइम यहाँ एक बंदा दौड़ के आ रहा था, उसको वो बहुत ऐसा बड़ा पेट था, तो मैंने यहाँ पे क्यों पॉजिटिव लिया कि चलो मैं जिम जाता हूँ, नहीं तो मुझे भी ऐसा जाना पड़ता है ना, वैसे काइंड का. तो ये कि मेरा अभी का वेट मेरा परफेक्ट, तो वैसे मतलब चार की. बट राहुल यहाँ पे जब आपने बोला ना कि वो भाग रहा था तो मैंने बोला थैंक गॉड दैट आई हैव बेटर. That is not a positive way, because आपने कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज किया, आपने कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज किया. So that is a negative feeling. Okay. Yeah. So you can only be grateful for your weight at that moment. Thank you. I have a perfect weight. Thank you. Yeah. Thank you for that. So that is थोड़ा सा वहाँ पे ना ऐसे ही हमें पता नहीं चलता ना, हम अपना नुकसान कर जाते हैं. Actually. Yeah. So that is why it's good that you shared this. Yeah. Thank you so much, Rahul. Haji, who else is going to share? आपको आसपास क्या क्यों दिखा आज अभी? Can I share? Yeah, okay. So abhi ka nahi, but last night, so yesterday being Holi and there was some other intense activity happening. So रात को guests bhi ho gaye and there was obviously no help yesterday. So there was like festival, kitchen was full of dishes. So I was washing the dishes in the night and my husband like छोड़ दीजिए ना, सुबह तो दीदी आ जाएंगी, कर देंगे. तो ऐसे नहीं, कर लेते हैं, doesn't matter. तो my mind, for one moment I thought अगर दीदी कल नहीं आई तो maybe she's tired because she likes to play Holi, you know, my help. So and then I told myself अब तुमने सोच लिया, so you're creating this for yourself. Yeah. So then I'm thinking of all of this while I'm washing dishes, and then it's 11 and I remembered that normally 9:30 a.m. on Tuesday morning I have a session with one of my very old client and very nice client's son in US. So he has some injury and उसको 9:30 देना पड़ता है क्योंकि उसकी late night होने लग जाती है.
So I suddenly remembered कि मैंने उसको तो Zoom link दिया नहीं है. So at 11 in the night, I'm creating the Zoom link and sending to him. My husband saying कि अभी भी आपको काम है? I said नहीं, मैं एक बार रोहन को check कर लेती हूँ. I'm thinking कि how will I manage, because I had house guests. One of my husband's friend, he lost somebody and he was feeling very depressed. So we said आप यहीं रुक जाइए मत घर. तो अभी, and I'm thinking all of this in my head, and I'm sending the Zoom link to this child, and then he says कि मोटा आंटी I'm going trekking, तो मैं कल नहीं आऊँगा सुबह. तो कल मैं क्लास नहीं लेता हूँ. मैंने कहा ठीक है. And he said I'm feeling so good. I have no pain. I am trekking and that's great. I said चलो बढ़िया. 4 o'clock in the morning, my house help calls me and says, Didi, I'm not feeling well today. I will not come. So the first thing I thought was, I'm so grateful, that Rohan is healthy and I have the bandwidth to cook and take care of my guests while I am, I'm not rushed to reach for my work. So these are the cues I always find, that when there is one thing you find a challenge, there's something else being created all the time if you're only looking for it. Yeah, thank you for sharing that. But I just want to say that, when you said that agar meri household kal bhi na aayi help, I know. That's why I shared this. You actually created it. Yeah. That's what I'm sharing. While I'm thinking it, I'm telling myself, no, you created it for yourself. Yeah. But it actually happened. Yeah. But at that time, when you were doing the dishes yourself, you could be grateful for her because she's always there to do it for you. Yeah. Yeah. So that when I did my Magic Rock in the night, what I was really grateful was that it was a long, intense day yesterday. There was a lot happening, and of course, festival and all. So when I did the Magic Rock, I was grateful for the simple fact that even though there was so much of work and everything, I was not feeling tired. I was not feeling low. And the body has been strong and mind has been happy. So that was my Magic Rock practice yesterday. Good, great. So now look around yourself throughout the day and see what all cues you are getting for today. And मुझे एक doubt है, Jagjit, when you said about this, when someone is not well, we say that be grateful for their health and mind, right? So especially this part, be grateful for their health and mind. So as if it has already been served, as if good health has already been created. Restored, yeah. Restored, yeah. Okay, thank you. Anybody else wants to share? अभी आपको कुछ क्यू मिला आसपास अपने जो आप पकड़ पाए हो तो शेयर करो. Oh yes. अभी मैं इतने क्यू हैं पकड़ते पकड़ते पूरा दिन निकल जाना है. सबसे बड़ा क्यू है अवेयरनेस. You see, suddenly we become so aware. वरना तो सोते सोते जिंदगी निकल जाती है बंदे की, रोते रोते जिंदगी निकल जाती है. Suddenly you realize what a beautiful wife you have, how caring she is. रात को मैं थोड़ा सा भी हिलता हूँ तो मुड़ के बैठ जाती, क्या हुआ? All right, everything is all right. मैं कह yes, I'm all right. मैं सपने देख रहा हूँ बड़े सुंदर. Amazing. So your day starts with lot of amazement. When you look up at the sky, it's so blue, breeze so cool. My God, you feel, wow, I'm so blessed. Think of the people who are living in pollution. I've seen the coal mines and people living in coal mines. They breathe coal. नाक में से सारा कोयला निकलता है उनके. बुरा हाल है वहां पर. सुबह से कोल वो शुरू हो जाता है. Similarly, if you keep aware and you keep dreaming of meeting nice people, you keep meeting nice people. Wow. So you invite whatever you think you are inviting actually in your life. Good health, good. Look at my not using specs. My God, I invited it. So why to use specs at all? Everybody can do that. Everybody can be healthy. So keep inviting. Keep aware about things around you. And magic has to happen. Jagjit hai na yaar. Thank you. Thank you. Thank you so much. This chapter is all about awareness and alertness. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah, Deepak wanted to say something. हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सामने पीपल का पेड़ है. तो पीपल के पेड़ का एक मैंने क्वालिटी इसका पढ़ा था कि ये दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है. सारे प्लांट्स नहीं देते. तो मैं अभी इसको थैंक्स कर रहा था मन की फर्स्ट से यार हेल्दी है. और अभी पार्क में था तो बच्चों के साथ वहाँ पे जाता हूँ तो बच्चे शाम को आते हैं तो खूब उनके साथ झूला हम झूलते हैं. उनके पेरेंट्स से बोलते हैं एक कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम झूलते हैं, वो हमें झुलाते हैं, हम उनको झुलाते हैं, बहुत मजा आता है. तो अभी वहाँ पे था, ये
बुक रीडिंग चल रही थी तो बच्चों के लिए थैंक्स बोल रहा था कि बच्चे हैं उनके लिए क्यू था। Yeah, तो thank बहुत सारे क्यूज हैं। दर्शन Yeah. करने एग्जैक्टली सही बोला, अगर पकड़ना चाहे तो बैठे रहे, पकड़ते रहे, कमी नहीं है क्यूज की। सही बात है। तो इसीलिए उन्होंने 7 दिए हैं कि जिनको थोड़ी सी पकड़ने में थोड़ा सा अभी आदत नहीं है पकड़ने की, तो एटलीस्ट 7 तो वो ढूंढ लें। यस यस, थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग। या प्रखर, यू वांटेड टू से समथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से कि दर्शन सर के बारे में कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, अनबिलीवेबल। या This is all gratefulness. I'm so grateful. Look at the people. Look at the people in this group. By God, I get so excited about whenever I come to this session. Jagjit, you are creating magic every day. yes. Every day. Magic is created by each and every person in this session. प्रखर कितना सुंदर लगने लगा है हंसता हुआ। पहले ये एकदम ऐसे बैठा रहता था, हंसता भी नहीं था, बिल्कुल स्माइल आती नहीं थी। Life is बहुत so सुंदर exciting लगता है। actually. एंड 4-5 दिनों पहले मेरे साथ एक और चीज हुआ। आई वॉज डीलिंग विद समथिंग, और फिर मेरे पास एक बुक थी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। तो मैंने उसे पढ़ भी रखा था, बट वो उस तरीके से मैंने उसको नहीं लिया था। देन आई सॉ दैट बुक इन माय रूम, मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने स्टेटस भी अपडेट किया, एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग दिस कोट एवरीवेयर। मैं एक बुक शॉप पे नोटबुक लेने गया, वहां देखा नोटबुक के कवर पेज पे भी यही लिखा है, एटीट्यूड इज। Yes. मैं जब वापस लौट रहा था तो एक आदमी सामने से आ रहा था, उसके टी शर्ट पे भी यही कोट लिखा है, और मैं हर जगह मुझे दिख रही थी, जो कि आज के पहले लाइफ में कभी नहीं दिखी थी। So this is Because you're seeking it, yeah. Yeah, so this is actually the cue from the universe for you. Yes. ये भी तो क्यों है कि यार नोएडा में। Actually, we all deserve beautiful life. We all have come here on a God's mela, God's marriage. Actually, you see, we are all here to celebrate, be happy, enjoy every day, eat what you want to eat. Oh, by God, क्या variety है? So everything you find wherever you look, you find cues. You know, what a beautiful day. Yeah. Thank you. Yeah, thank you, sir. Anybody else wants to share? कोई क्यू दिखा आपको आप अपने आसपास अभी? Okay, so throughout the day, be alert and be, create awareness so that you are able to catch cues. क्योंकि आपको 7 cues आज, collect करने हैं to be grateful. And it's not difficult. 7 आराम से मिल जाएंगे. सिर्फ ये है कि आपको awareness आपकी होनी चाहिए और alertness होनी चाहिए. Yeah. I got a cue from Darshan sir. He was saying about glasses, and this is Darshan sir, something I'm really working on. That abhi minors, I have got this minor reading glass powers. I'm really very keen not to miss it. मैंने एक्चुअली शुरू में जब मैंने ये सब शुरू किया था ना, उस टाइम मैं दौड़ के लोगों की मदद करता था, भाग के करता था, थक जाता था, हाफता रहता था, फिर भी मदद करता था। Then I gave up. मैंने said यार जो मेरे पास आएगा, जो मुझे कॉल करेगा, जो मुझे पकड़ेगा, जैसे कल दीपक ने मुझे पकड़ा, मैं बैठा सैलेड खा रहा था तो दीपक ने मुझे फोन कर दिया, और ये ही बिलीव्स इन वीडियो फोन है, तो मैं पकड़ा गया ऐसे सैलेड खाता हूँ। तो इसने क्वेश्चन भी मेरे से क्या पूछा कि आप जो 1 घंटा पहले लंच से सैलेड खाते हैं, इसका क्या मतलब है? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये मतलब है। तो आई होप दीपक अंडरस्टूड, एंड दीपक इज गोइंग टू गेट द 100% बेनिफिट ऑफ ईटिंग सैलेड 1 hour बिफोर योर लंच, नॉट विद द लंच। वाओ! So, whosoever come, उसको जरूर दो, जो नहीं आता उसकी मर्जी है भाई, let him enjoy his life. Yeah. So did you get your cue, Moita? Yeah. Okay. I just got it, yeah. Yeah. Okay, anybody else wants to share anything? Meenu, Ranjan, I don't know who all are there in the session. I can't see everybody's name. Hi, this is Anji Kapoor from Noida. Yeah, Anji. So, in fact, you had just tried to wind up the session, and then Colonel Darshan will start speaking something. So, no, I had a curiosity to say something about the queue, but I was realizing it, yeah, chalo session to band ho raha hai. Come on, yeah, leave it, yeah. So, but again, you spoke out. Anybody want to say anything? So I said, like, this is a cue for me to share my experience. Yes. You know, the belief of that, that someone is along with you, as we all are interdependent.
So I believe that the Almighty, the God, the nature, the feelings are with me. तो Yes. उसको मैं कैसे समझूं? How do I understand that Almighty, this God is with me? Yes. So I get always a cue when I am seeing my watch. Generally, it is 11:11 or 12:12 or 2:2. So this automatically I have just taken up as if the God is with me, and this clue is always happening, and it is not always like that. When I see the time is like that. So what is happening? It now is somebody, I don't wear the watch. So somebody who asks me the time, I just tell them the right time. उसमें 1 या 2 मिनट का फर्क होता है, 15-20 मिनट का फर्क. So this is the thing which is happening with me, and I am grateful that you have brought a lot of awareness in us that we can enjoy each and every moment of our life. Thank you, Jagjit. Thank you very much. Thank you so much, Anji ji, for sharing it. Okay, who else would like to share? Atul, Anjali, Colonel Somdat. Anybody wants to share anything? Did you find any cue right now? आपको कुछ दिखाई दिया जिसके लिए आप grateful हो सकते हो अभी? Jagjit ma'am, I want to share something. Yeah, Minu. I want to read this reading session for many days. मेरे मन में चल रहा था कि मुझे reading करना है, but I could not. But since I read this chapter today, I found the cue that there are more ways to be thankful for. अभी I am quite alert. I do gratitude for many things. But आज मुझे ये lesson मिला कि अभी कहीं कमी है. You have to be more grateful for many, many, many things. Absolutely. Thank you so much. Absolutely. You're welcome. Welcome. एक छोटी सी शेयरिंग करती हूँ. हाँ जी रंजन जी. कल कुछ ऐसे ही हो गई कुछ बात, बट मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी जगह मुझे इतनी सिंपैथी, कंपैशन और प्यार आया कि मैं खुद ही नहीं समझी कि ये मतलब इतना चेंज आ गया. तो मैंने कहा शेयर करूं, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हुआ. नहीं तो हमेशा जैसे एक्साइट हो जाते हैं, खुद भी गुस्सा आ जाता है, तो वैसा बिल्कुल 1% भी नहीं हुआ. 1%. Yeah. So this book says na you're not the same person anymore. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so Thank much you. रंजन जी. आपकी तबीयत ठीक है? मैम पेन बहुत है अभी भी. काफी है. मैं तो सोच रही थी कि ठीक हो जाऊंगी जल्दी, बट ये पेन ने जो है ना, उसने मुझे अभी रखा हुआ है रेस्ट पे. हाँ. So be grateful that you are getting rest for your body, because your body needed rest. Yeah. Instead of feeling that there's a lot of pain and मुझे rest करना पड़ रहा है. So be grateful that you are able to rest because your body needed it, and that's when you start looking at, and tomorrow's chapter is very important. जब हम कल का chapter करेंगे वो बहुत important है कि हम negative situations में से कैसे positive उसको convert कर सकते हैं. To be grateful for things in life. Yeah. And all the best. Take care. Yeah. Thank you, Ji. Thank you. Anybody else wants to share anything before we conclude the session? Okay, so let's do our gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you everybody. And आज पूरे दिन में आपने cues पकड़ने हैं कि यूनिवर्स आपको कैसे कैसे cues दे रहा है to be grateful, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दिन को gratitude से भरते चले जाएं. और जब आपको ये when you start playing this game ना, आपको बहुत मजा आने लगेगा. और आप ये एक दिन करके छोड़ोगे नहीं, आपको हर जगह cues दिखने शुरू हो जाएंगे. Every day you will start catching cues, and the more cues you will catch,
the more grateful you will be. And the more grateful you are, the more magic you will attract in your life. Yeah. So that is the whole purpose, the whole intention of this book. And now we are, edging towards the end of the book. And अभी वो ऐसी चीजें आपको दिखाते जा रही है book, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत मैजिकली, जितना चाहो उतना मैजिकली उसको आप improve कर सकते हो, create कर सकते हो. Yeah. Okay. So thank you everybody, and I will see you tomorrow at 6:20. Bye bye. Thank you everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. A lot of